Hello students, today we will discuss practical problem number 2nd. Name of the chapter depreciations. Textbook page number 244. Into this practical problem number 2nd, we discuss method first, straight line method. Yeah, another word called fixed installment method. Yeah, original cost method. Into this first method, we discuss how to calculate the amount of depreciations when assets are purchased and assets are sold into this problem number 6. On 1st January 2017, Sai Industries Nagpur purchased a machinery cost of rupees 1,65,000. प्रॉब्लम नंबर 2 उसका सॉल्यूशन देखते हैं. Practical problem, snake line method. First method, asking question number 6 is going to 12 marks. Question number 6 में 12 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. It is compulsory, इसको और नहीं रहता है. We did the problem number 2. Into this problem number 2, we purchased a machinery 1st January. 1st January का हमने machinery purchase किए 2017. Year 2017. Sai Industries. Sai Industries. The name of the area Nagpur. नागपुर से अपने साई इंडस्ट्री से परचेस मशीन परचेस किया. परचेस मशीन अपने मशीन परचेस की. उसका कॉस्टिंग था यानी उसका मूल्य जो था कॉस्टिंग रुपीज 1,65,000. 1,65,000 उसका क्या था कॉस्टिंग का. कॉस्टिंग एंड मूल्य उसकी वैल्यू थी 1,65,000 एंड spent 15,000 and spent आपने spend किया यानी खर्च किए. spend means खर्च करना. spent rupees 15,000. उसके लिए 15,000 रुपए को खर्च आया. पेमेंट भी 15,000 15,000 रुपए को खर्च आया. 1,65,000 का उसका कॉस्ट था. स्पेंड किया 1,65,000 यानी टोटल कितना होगा 1,65,000 प्लस उसका खर्च प्लस करके टोटल मशीनरी वैल्यू कितनी होगी आपकी 1,80,000. For the installation charges, so 15,000 for the installation charges. Installation charges क्या है उसको लगाने के लिए स्थापित करने के लिए installation charges. The estimated life of machine. अंदाजी जो उसका लाइफ था estimated life of machine is 10 years. Estimated life of machine estimated life of machine 10 years. उसका लाइफ का 10 years. 10 years life of machine 10 years and scrap value at the end of the its life was 30,000 and scrap value उसकी जो थी and scrap value of the machine is 30,000 rupees. 30,000 उसकी scrap value थी. On उसके बाद में सेंटेंस इंपॉर्टेंट. On 1st October 2018. 1st October 2018. 1 अक्टूबर 2018. The entire machine was sold. The entire machine was sold. ये मशीन आपने क्या की सोल्ड की बेच डाले 1 अक्टूबर. For rupees उसका अमाउंट था for rupees 1,50,000. 1.5 लाख को आपने बेच दिया. 1,50,000 कितने में बेचा आपने 1,50,000. शो मशीनरी अकाउंट डिप्रिसिएशन अकाउंट. आपको शो करना है शो मशीनरी अकाउंट डिप्रिसिएशन अकाउंट शो मशीनरी अकाउंट डिप्रिसिएशन अकाउंट. 2 अकाउंट आपको ओपन करना है. for the year 2016-17
2017-18, 2018-19, 2018-19, and 1 year, 2 year, 3 year, 2016, 17, 17, 18, 17. Assuming that, ऐसा गणित धरना है आपको, assuming यानी गणित धरना, assuming that the amount या वो जो अकाउंट आपका है, assuming that the account are close 31st March every year, हर साल 31st मार्च को अकाउंट आपको क्लोज करना है. Above this informations, we calculate the amount of depreciations and machinery account, and also we should prepare depreciation accounts. यहाँ पे दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, machinery accounts and depreciation accounts. ये आपका प्रॉब्लम नंबर सेकंड है. In 1st January 2017, साई इंडस्ट्री नागपुर से अपने एक मशीन परचेस किया, उसका कॉस्टिंग था 1,65,000, इंश्योरेंस चार्ज उसका 50,000 आपका है. अपनी मशीन सोल्ड किए अक्टूबर 2018 मशीन वॉज सोल्ड. ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि आपको ये मशीन सेल करके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आपको कैलकुलेट करना है. इस मंथ को 2018 अक्टूबर 2018 को ये आपने सोल्ड किए, तो आप मशीन सोल्ड करने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आपके बिजनेस को, ये अमाउंट आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना पड़ता है. तो हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन and loss on sale of machine amount into the problem of second. So we see the solution first. In the books of name of the firm Sai Industries. आपने क्या परचेस किया, उस नाम से आपको अकाउंट ओपन करना है. we open purchase machine account, तो मशीन अकाउंट क्या करना है आपको ओपन करना है. ये विल परचेस सम मशीनरी, दैट इज मशीनरी अकाउंट या मशीन अकाउंट, ये दोनों में से एक शब्द आप लिख सकते हैं. मशीन अकाउंट बोलो या मशीनरी अकाउंट. यहां तक आपको समझ में आया होगा. वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लेजर. मशीनरी अकाउंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. आपको मालूम है 4 कॉलम डेबिट साइड में, 4 कॉलम आपको क्रेडिट साइड में प्रिपेयर करना है. वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको ईयर दिया हुआ, हाउ मेनी इयर्स यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, इसका सेंटर लिखेंगे पहले डेबिट साइड क्रेडिट साइड. ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड आपकी. पहला कॉलम आपका डेट का होता है, 4 कॉलम डेबिट साइड आपको होते हैं. डेट, राइट डाउन द डेट इन डेट कॉलम. पर्टिकुलर, उसके बाद में हम जेएफ का जनरल फोलियो का आपका कॉलम होता है. उसके बाद में सेम कॉलम क्रेडिट है. पहला डेट का, डेट के बाद में आपका कॉलम पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के बाद में आपको एलएफ का कॉलम ऑफ एलएफ, लेजर फोलियो. ये अपना स्ट्रक्चर ऑफ लेजर, ये लेजर का स्ट्रक्चर आता है. डेबिट साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड ऑफ दैट अकाउंट्स. ये क्रेडिट साइड आपकी डेट, राइट ऑन द डेट इन डेट कॉलम. यहाँ पे पर्टिकुलर डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजैक्शंस. पर्टिकुलर डेबिट में आप 2 लिखते हैं, क्रेडिट में बाय लिखते हैं, कस्टमर वर्ड्स. ये आपका जेएफ का कॉलम होता है, जनरल फोलियो. अमाउंट इन रुपीज, ये आपका डेट का कॉलम. अगेन क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, जेएफ, अमाउंट इन रुपीज. अमाउंट इन इंडिया में करेंसी रुपए, से ये आपका डेट का कॉलम. ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट.
डेट पर्टिकुलर जे अकाउंट्स। आपको साल दिया हुआ है 2018, 1 जनवरी 2017, ईयर लिखो 2017, जनवरी 1 का ट्रांजेक्शन आपको करना है। आपको क्लोज करने के लिए कहा गया है 31 मार्च हो गई है, 31 मार्च को आपको अकाउंट क्लोज करना है। 31 मार्च को अकाउंट बी क्लोज, अकाउंट आपको क्लोज करना है। अकाउंट आर क्लोज 31 मार्च, 31 मार्च को आपको क्लोज करना है। जनवरी ईयर आपका चेंज होता है 2018 मार्च 31 मार्च को आपका फिर क्लोज करना है 2018 को, क्योंकि आपका ईयर जो है ये 17, 18, 16, 17, 17, 18, 18, 19 आपका कैलकुलेट करना है। तो आपको कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशंस, आपको जो दिया कैलकुलेशन में 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 18, 19 के बाद में आपको 18 यहाँ पे आप सोल्ड करके अपने फर्स्ट आपको 2018 यहाँ पे आपका सेलिंग ईयर आपका है, आपने मशीनरी सोल्ड किए 1.5 लाख। यहाँ पर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ मशीनरी अकाउंट्स या मशीन अकाउंट आपने फिगर किया। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ machinery depreciations? We see the information is given here. Depreciation का जो फार्मूला आता है, आपने जो फार्मूला क्या आपका डिप्रिसिएशन था, depreciation per annum is equal to depreciation is equal to ये per annum का आपको साल भर का कैलकुलेट करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एसेट की जो कॉस्ट है आपकी माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसमें से माइनस क्या करते हैं आप, स्क्रैप वैल्यू करते हैं, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू ने भंगार में बेचने के बाद जो आपको उसकी कीमत आनी है उसे होते हैं स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय एस्टिमेट लाइफ ऑफ मशीन, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। मशीन या एसेट्स इन ईयर्स में रहता है, इन ईयर्स। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना आपका 1,65,000, इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस आप 500 परचेसर को करना पड़ेगा, 15,000 आपकी इंस्टॉलेशन चार्जेस है, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितना है, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10 इयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू 30,000, 30,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू 30,000 रुपए से माइनस डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन वाज 10 इयर्स। पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम में दी जाती है 10 इयर्स। इसको कैलकुलेट करते हैं 165 प्लस 15 कितना होता है 180,000, 1,80,000 माइनस ये 30,000 स्क्रैप वैल्यू के डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, ये 10 इयर्स है कैलकुलेट करो। 180 में से 30 गए तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, एक जीरो कट होगा, कितना रहेगा आपका डिप्रिसिएशन 15,000 पर ईयर। फर्स्ट मेथड आपकी इसलिए फर्स्ट मेथड में डिप्रिसिएशन कितना रहता है आपका पर ईयर, डिप्रिसिएशन अमाउंट कितना आएगा आपका 50,000 पर ईयर आपका 15,000। हर साल आपका डिप्रिसिएशन 15,000 15,000 15,000 ऐसा आपको 16 17 17 18 18 19 तक आपका डिप्रिसिएशन आपका आएगा पर एनम साल भर का। ये वर्किंग नोट है आपका, वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेशन करना है, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं इसलिए मैनुअली आपको कैलकुलेट करना है। 15,000 रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वी शुड कैलकुलेट नाउ अपने द फार्मूला ऑफ डिप्रिसिएशन फार्मूला अप्लाई करके आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपका आया 15,000 पर ईयर पर एनम। So first we pass the entry into this respective accounts. We issue the machinery account entry आप pass करते हैं, machinery accounts is given there. On 4 January 2017, Sai Industries ने machinery purchase की, purchase of machinery cost में 65,000, 1,65,000। ये जो अमाउंट आपको कैश अमाउंट आपका है या बैंक में आप उसको जमा करते हैं इसलिए कैश ऑपरेट बैंक अकाउंट। तो इनर में लिखो 1,65,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस आल्सो प्लस गेट इनटू दैट अमाउंट 15,000 रुपए उसको आपको प्लस करना होगा इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस 15,000 कितना होगा एक्चुअल अमाउंट आपको बाहर लिखो 1,80,000। एक्चुअल वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज 1,80,000, 1,80,000 में आपको मशीनरी। तो 1 जनवरी टू 31 मार्च 2018 आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमेशा दो
इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है। पहला है बाय डिप्रिशिएशन, आपको एंड 31 मार्च को और एक कैलकुलेट करना है बाय 2018 को बाय बैलेंस शीट। यहाँ पे आपको उसका बैलेंस कैलकुलेट करना, बैलेंस कैरिड डाउन, ये दो चीज आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अनदर मशीनरी नहीं है परचेस की, इसलिए आप ऐड करने की जरूरत नहीं। इसकी टोटल आपको करना है, जो हाईएस्ट टोटल है 1,80,000। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। सेम पैरेलल लाइन में ये टोटल आपको ड्रॉ करना है, इसी लाइन में 1,80,000। यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना 15,000, उस ईयर का आपका 15,000 पर ईयर का है। मगर जनवरी टू मार्च कितने होते हैं? 1 जनवरी टू 31 मार्च। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? कितने मंथ्स होते हैं? देखो जनवरी को आपको परचेस किया मशीनरी, जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी का एक डेट है, पूरा मंथ आपको लेना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 3 मंथ्स आपके होते हैं। यहाँ का जो डिप्रिसिएशन इन दैट ईयर 2017 टू 2018, ये आपको 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स। गेट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। ये जनवरी टू दिसंबर कितने होते हैं आपके? 3 मंथ्स होते हैं, इसलिए 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 मंथ्स डिप्रिसिएशन अमाउंट, ये 1 ईयर का आपका, ये आपका 1 ईयर का, 1 ईयर है 12 मंथ्स इज इक्वल टू 12 मंथ्स, ये 12 मंथ्स का आपका है। 6 मंथ का उसका कितना है, उसका हाफ आपको कैलकुलेट करना है। 6 मंथ या 12 मंथ का, 6 मंथ का इसका हाफ कितने होते हैं? 15,000 के हाफ। ये 12 मंथ का, 6 मंथ का आपको कितना होता है? 15,000 के हाफ कितने होते हैं? 7,000। 10,000 के आगे कितने होते हैं? 15,000 के आपको हाफ करना है, 7,500। और 3 मंथ्स के कितने होते हैं आपके? उसके हाफ करना है 7,500 के हाफ को 3 मंथ्स का पता पड़ेगा 3,750, 3,750, जबकि 3 मंथ्स के होते हैं। 3 मंथ्स का आपको कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन 4 जनवरी से लेकर 31 मार्च इज गोइंग टू 3 मंथ्स, इसलिए 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आपका आता है 3,750। 12 मंथ का आप नहीं ले सकते क्योंकि आपका परचेस है 1 जनवरी से, 1 जनवरी टू 31 मार्च 2018 इज गोइंग टू 3 मंथ्स, उसके पूरे 3 मंथ्स आपको, इसलिए इस ईयर का जो डिप्रिसिएशन है आपका 3 मंथ्स का आपको कैलकुलेट करना है। 1 ईयर का कितना आता है आपका? इज गोइंग टू 15,000। 15,000 आपका 12 मंथ का आता है, 6 मंथ का उसके हाफ करो, इसका 6 मंथ का हाफ कितना आता है? 7,500। 15,000 के आगे कितने आते हैं? 7,500। उसका 3 मंथ्स का आपको क्या करना है? 7,500 की हाफ आपको करना है, 3 मंथ्स का कैलकुलेशन आएगा 3,750। दैट अमाउंट टेकिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इन 3 इयर्स। ये 3 इयर्स का डिप्रिसिएशन आपका 3,750। यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है, 1,80,000 में से 3,750 माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है बैलेंस करेगा। कितना बैलेंस होता है? देखो कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। 1,76,250 ये बैलेंस आपका है। 1,76,250 ये को ब्रॉट डाउन करना है, बैलेंस कैरी डाउन को क्या करना है? यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है डेबिट साइड में। डेट आपकी रहेगी मार्च के बाद में कौन सा मंथ आता है? अप्रैल 1 2018। मार्च के बाद में कौन सा मंथ आता है? अप्रैल 1 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो कैरी डाउन था उसको ब्रॉट डाउन आपको करना है सर। यहाँ पर परचेस है, देखो परचेस नहीं होगा तो डायरेक्ट आपको अगेन उसको क्लोज करना है 31 मार्च एवरी ईयर। आपको एवरी ईयर 31 मार्च को आपको क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, 31 मार्च को आपको क्लोज करना है, इसलिए 31 मार्च को आपको क्लोज करना है। तो 31 मार्च 31 दो कैलकुलेशन आपको करना है, हमेशा कहते हैं डिप्रिसिएशन and 31 March by balance CD, बैलेंस कैरी। डिप्रिसिएशन आपका है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये कितना होता है? 12 मंथ्स का आपको डिप्रिसिएशन देना है। डिप्रिसिएशन आपको 12 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आपको कितना है? 15,000 रुपए, 15,000 रुपए पर एनम, 15,000 रुपए आपका है। 15,000 रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपका 15,000 होगा। यहाँ पे आगे टोटल आपको करना है, जो हाईएस्ट टोटल आपको पहले करना है बैलेंस के 1,76,250, ये अमाउंट यहाँ पर लिखो 1,76,250
यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है बैलेंस कैरी डाउन। 15,000 माइनस करो 1,76,450 में से, तो 1,61,250 आपका बैलेंस कैरी डाउन। उसको ब्रॉट डाउन करो, ये कैरी डाउन बैलेंस है, उसको आपको ब्रॉट डाउन करना है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,61,250। यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस आपने ब्रॉट डाउन किया। बीडी फॉर ब्रॉट डाउन, डेट लिखना है मार्च 2018, यहाँ पे आएगा मार्च 2019, क्योंकि आपकी चेंज होता है दिसंबर के बाद में। ओपनिंग करना 2019, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी के बाद ईयर चेंज होते हैं। यहाँ पे 2019 आपका आएगा 31। ओपनिंग आपको करना है मार्च के बाद अप्रैल 2019 अप्रैल 1 to balance brought down to balance BD brought down 1,61,250। ये जो आपका जो बैलेंस आपका है 1,61,250 आपको ब्रॉट डाउन करना है। यहाँ पर परचेस है क्या? नहीं, परचेसिंग नहीं आपकी इसने। आगे आपको 19 के बाद में कौन सा ईयर आता है? 2019, 17, 18, 18, 19। तो 19 को आपको 2018 फर्स्ट अप्रैल 2018 जो आपका आया 2017, 18 आपको जो 17, 18 अप्रैल मई जून जुलाई 18 टू क्या मार्च आपका आया। कैलकुलेशन करो उसका पूरा रफ आप कैलकुलेट अलाउ नहीं है, इसलिए आप यू शुड कैलकुलेट 2017, 18 एंड 18 जो आपका है 2018, 2016, 17 डेट कितना आएगा? मार्च आपका 31, 2001 जनवरी 2017 ये जो आपका ईयर है 2017 जनवरी के बाद में फरवरी मार्च 2017, 71 2017, 18 17, 18 यहाँ पे आएगा 2018 अप्रैल 2018 मगर 2018 को क्या किया आपने? अक्टूबर में आपने मशीनरी यहाँ पे सोल्ड की, यहाँ पे आपने मशीनरी सोल्ड किए। तो 1 अक्टूबर 2018 तो मशीनरी वाज सोल्ड, यहाँ पे आपने मशीनरी सोल्ड किए हुए, इसलिए आपका ईयर 17 जनवरी फरवरी मार्च इस साल 17 ही रहेगा आपका। 2017 मार्च 17 मार्च के बाद अप्रैल आता है 17 यहाँ पे ईयर 18 19 आप पाएंगे। मगर 18 में आपने क्या किया? मशीनरी सोल्ड किए, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ मशीनरी सोल्ड, उसके ऊपर डिप्रीशिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रीशिएशन व्हेन मशीनरी वाज सोल्ड इन 1 अक्टूबर 2018। ये आपका डिप्रीशिएशन याद रखना है फॉर 4 ईयर का आपका साल भर का 1,500 रुपए, 6 मंथ का आएगा 7,500 और 3 मंथ का आएगा 3,750। इस साइड में यहाँ पे थोड़ी स्पेस बनाते हैं। We should calculate the machinery amount on sold date तक की कैलकुलेशन आप करेंगे। मशीनरी सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करते हैं ग्राफ वर्किंग के अंदर और स्टेटमेंट प्रिपेयर करके उसका कैलकुलेशन करते हैं। ये अमाउंट ऑफ डिप्रीशिएशन है 15,750। इसी कट करते हैं, इसका काम हो चुका है। ग्राफ वर्किंग के लिए आपको स्पेस बनाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, ग्राफ पेज को यूज करना है। स्टेटमेंट शोइंग, ये वर्किंग नोट है आपका, वर्किंग नोट, इसमें आप प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम सेल ऑफ मशीन्स। स्टेटमेंट शोइंग एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीनरी बोलो या मशीन बोलो। एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इस स्टेटमेंट में आपने मशीनरी सोल्ड किया 1 अक्टूबर 2018, ये आपकी डेट है, ये आपकी सेलिंग डेट ऑफ मशीनरी, सेलिंग डेट आपकी 1 अक्टूबर तक आपका डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। तो परचेस प्राइस जो आपके परचेस ऑफ मशीनरी जो आपके एज पर टेक्स्ट बुक में 224 में उसको देखते हैं। परचेस ऑफ मशीनरी उसी ओरिजिनल कॉस्ट आपको लेना है। परचेस ऑफ मशीनरी या परचेस ऑफ मशीन, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट लेना है। ओरिजिनल कॉस्ट, टेकिंग द ओरिजिनल कॉस्ट आपकी जो है वो है 1,65,000 उसकी वैल्यू थी।
और उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना था आपका 15,000 रुपये। टोटल कितना होगा उसका, अभी फॉर्म ड्रॉ करते, टोटल कितना होगा 1,80,000। 15,000 उसमें प्लस करो 1,80,000। ओरिजिनल कॉस्ट जो आपका हुआ 1,80,000, 1,65,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस जो आपके 15,000, ये दोनों की टोटल आते हैं आपकी 1,80,000। आउटर कॉलम आपको लिखना है। इसके बाद आपको डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना, टोटल डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। टोटल डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन आपको सेलिंग ईयर तक का, अक्टूबर तक का आपका टोटल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। टोटल डिप्रिसिएशन कहां तक का, अक्टूबर अप टू अक्टूबर 2018, अप टू अक्टूबर 2018, फर्स्ट अक्टूबर 2018 तक का आपको डिप्रिसिएशन करना है, अप टू डिप्रिसिएशन 2018 तक। इसकी डेट क्या है, परचेसिंग डेट 1 जनवरी, यहाँ पे आपने परचेस किए थे 1 जनवरी 2017, 2017 को आपने किया कि परचेस किया 2017, 2017 ये परचेस प्राइस आपकी 1,80,000 को आपने परचेस किया। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। इसलिए 1 अक्टूबर 2017 टू 31 मार्च 2000 1 जनवरी, जनवरी आपका 1 जनवरी 2017 परचेज डेट 1 जनवरी 2017 टू 31 मार्च 2017, जनवरी फरवरी मार्च साल वही रहेगा आपका। जनवरी टू 31 मार्च कितने होते हैं आपके, इज गोइंग टू 3 मंथ्स। इसके कितने मंथ्स होते हैं आपके, 3 मंथ्स होते हैं। 3 मंथ्स का कैलकुलेशन यहाँ से जनवरी से लेकर मार्च तक का 3 मंथ्स का कैलकुलेशन। डिप्रिसिएशन कितना आपका, डिप्रिसिएशन जो आपका आया एज पर फॉर्मूले के अनुसार 15,000 पर एनम, 15,000 आपका हर साल का 1 ईयर का। तो आपको 3 मंथ्स का चाहिए, तो 6 मंथ का कितना होगा, इसके हाफ करना है 50,000। 6 मंथ का आपका इसका हाफ कितना होता है, 15,000 की 7,400, और 3 मंथ्स 7,500 के आधे कितने होते हैं, 3,750। आपको 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन करना है। 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आपको कितना आता है 3,750, टेकिंग द अमाउंट ऑफ 3,700 और 3 मंथ्स। इसके बाद में आपने सोल्ड डेट तक अप टू दिस डेट आपको कैलकुलेट करना है। इस अक्टूबर तक आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसलिए अगेन आपका फर्स्ट, उसके बाद में जो डेट आएगा अप्रैल को आप ओपनिंग करेंगे 2018 को। सो 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018, यहाँ पे साल चेंज होता है आपका। अप्रैल टू मार्च, 31 मार्च के बाद ओपनिंग कब करते हैं आप, अप्रैल को करते हैं 2017 को। 17 टू 18 ये 12 मंथ्स का आपको कैलकुलेट करना है। 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कितना आता है देखो, 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी आपने निकाल चुके हैं, 1 ईयर का 15,000, ये आपका 15,000, 12 मंथ्स का आपका 15,000 आपका आएगा। आपकी सेलिंग डेट अभी आपने शोर किए थे अक्टूबर को, 1 अक्टूबर। तो अगर ओपनिंग कब करेंगे आप, अप्रैल को ओपनिंग करेंगे, अप्रैल 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 से आप क्या करेंगे, उसको ओपनिंग करेंगे। मगर अक्टूबर को आपने सोल्ड की, सोल्ड डेट क्या आपकी अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2018 टू 31 मार्च, 1 अक्टूबर 2018 टू 31 मार्च 2018, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 2018 अप टू दिस डेट, ये आपकी सेलिंग डेट आपके 1 अक्टूबर 2018 टू 31 मार्च। ये कितने होते हैं देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 1 2 3 4 5, अक्टूबर का पूरा मंथ आपको लेना है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 6 मंथ आपको होते हैं। अक्टूबर का फर्स्ट पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर जनवरी फरवरी 1 2 3 4 5 और मार्च 6, पूरे 6 मंथ है। ये 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मंथ का आपको डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और अप टू दिस सेलिंग डेट अक्टूबर टू 31 मार्च इज गोइंग टू 6 मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अक्टूबर टू मार्च कितने मंथ होते हैं आपके, पूरे टोटल 6 मंथ होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, आपने सोल्ड किए थे अक्टूबर 2018, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का अक्टूबर, ये नवंबर, यहाँ तक आपको करना दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। 1 2 3 4 5 6, 6 मंथ का आपको डिप्रिसिएशन पे कैलकुलेट करना है। सेलिंग डेट आपका 6 मंथ, 6 मंथ का डिप्रिसिएशन आपको कितना आता है 7,500। यहाँ का टोटल डिप्रिसिएशन जनवरी 2017 टू अप टू दिस
31 मार्च 2018। ये पूरा आपको नियर बाय 20 मंथ्स का आपको डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 18 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, 21 मंथ्स का आपको टोटल जो डिप्रीशिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना था। इसलिए जनवरी टू मार्च 3 मंथ्स का 3750 ये हमने कैलकुलेट किया है। जनवरी फॉर 17 टू 18 15,000 रुपये आपने कैलकुलेट किया यहाँ पर। बाकी सेलिंग डेट आपके अक्टूबर तक की, अक्टूबर को आपने सेल किए थे यहाँ पे, इसलिए अक्टूबर टू मार्च कितने होते हैं, 6 मंथ आपके होते हैं। तो 6 मंथ का डिप्रीशिएशन आपको काटना, ये 3 मंथ्स, ये 12 मंथ्स, ये 3 मंथ्स, ये 12 मंथ्स, इसकी टोटल करो और बाहर ले लो और इसमें से माइनस करना आपको। डिप्रीशिएशन पूरा माइनस किया था, बाद में कैलकुलेशन किया था। इसकी टोटल कितने देखो, 15 3 18 18 और 7 कितने होते देखो, और इस 500 और 750 इनकी टोटल आपको कैलकुलेटर कॉलोनी टोटल आपकी 26,250। इसमें से माइनस करो 1,80,000 में से, ये जो वैल्यू आएगी उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। इस वैल्यू को आपने क्या करना चाहिए था, वो बस मुझे सोल्व करना चाहिए। 1 2 3 4 6 2 5 0 ये तो आ जाता है। 18 में से 2 गए, कितना रहता है, ये 5, ये कितना रहता है, माइनस करो 0 5 7, अभी एक रहता है 7 और 3 कितने हो गए 10, एक गए 5, 1,50,000 इसे बोलते हैं बुक वैल्यू। इस बुक वैल्यू को आपको मशीन को सोल्ड करना था, और आपने लेस सोल्ड कितने में किए, इसमें से लेस करना है, लेस सोल्ड कितने में सोल्ड किया आपने, 1,80,000 सोल्ड किए, इज गोइंग टू सोल्ड अमाउंट इज गोइंग टू 1,50,000, 1,25,000 को आपने सोल्ड किया एज पर आवर प्रॉब्लम के अनुसार, 1,25,000 को आपने सोल्ड किया, यानी बेचना था 1,53,000 को, सोल्ड किया आपने 1,25,000 को। आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, आपको सेलिंग प्राइस आपकी आई थी एज पर आफ्टर डिडक्शंस ऑफ डिप्रिसिएशंस 1,53,750 को आपको सोल्ड करना था, मगर आपने सोल्ड किया अक्टूबर में 1,50,000 को, आपने डिप्रिसिएशन और कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए सेलिंग प्राइस आपकी क्या है, लेस है, कम है। बेचना था आपको 1,50,750 में, बट यू सोल्ड योर मशीन 1,50,000। इट्स अ लॉस ऑफ द बिजनेस। ये क्या हुआ आपका, लॉस है, इट्स अ लॉस, इट इज कॉल्ड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स बेच के आपको क्या का लॉस है, कितना आएगा लॉस, माइनस करो 3,750, 1,53,750 में से 1,25,000 आपने माइनस किए, 3,07,550 इज द लॉस ऑफ द बिजनेस। इस मशीन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन बेच के आपको क्या होगा, लॉस आ। तो अक्टूबर को आपको लॉस आ जाए, 3 कैलकुलेशन आपको करना, अक्टूबर 2018 अगेन डेट लिखो बाय 1 अक्टूबर 2018 यहाँ पे पहले जो मशीन की वैल्यू जिस अमाउंट को आपने सोल्ड की वो अमाउंट को आपको बैंक में जमा करना है। बैंक तो उसका आपका टाइप्स होता है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इनटू ब्रैकेट अमाउंट ऑफ सोल्ड का अमाउंट कितना, कितने में सोल्ड किए थे आपने 1,50,000, ये आपको 1,50,000 आपको अमाउंट बैंक में आपको राइट डाउन करना है। उसके बाद सेकंड आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर की फर्स्ट डेट है आपकी 1 2 3 4 5 6 ये 6 मंथ आएंगे, फर्स्ट डे दे करके इसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ये अक्टूबर को आपको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कितने मंथ होते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने मंथ होते हैं आपके 6 मंथ आपके होते हैं। 6 मंथ का डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ का डिप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किए हुए ऑलरेडी दैट मशीन। 6 मंथ का डिप्रिसिएशन कितना आता है, 6 मंथ का डिप्रिसिएशन 7,500 इज राइट डाउन टू द डेट कॉलम 7,500। और इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, कितना लॉस हुआ है प्रॉफिट आपको, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मशीन पीएल अकाउंट आपको लॉस हुआ है, येलो डब्ल्यूएस लॉस, आपको लॉस हुआ, लॉस ऑफ क्रेडिट साइड में राइट डाउन करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना लॉस हुआ आपको 3,750 राइट डाउन टू द लॉस अकाउंट्स। बाद में हमेशा की तरह आपको क्लोज करना है 31 मार्च को, मार्च
31st 2018, March 31st 2018, March 31st 2018, March 31st 2018, 2018 को आपको क्लोज करना है 2018 मार्च 31st। यहाँ पे दो कैलकुलेशन करना है 2018 मार्च 31st, दो कैलकुलेशन आपको करना है। हमेशा की तरह डिप्रिसिएशन है बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड बैलेंस कैरिड। इसकी टोटल करते एक बार 1,61,250, 1,61,250। ये टोटल करके देखो तीनों की टोटल, इसमें डिफरेंस कितना आता है 1,61,250 लॉस ऑन सेल ऑपरेशंस। ये पहली टोटल है 1,50,000, उसमें प्लस करो 7,500, उसमें प्लस करो 3,750, 05216। इसकी ये तीनों की टोटल आती है 1,65,250। सेम वही टोटल आती है डेबिट की भी आपकी 1,61,250। यहाँ पर आपका डिप्रिसिएशन यहाँ पे आपका कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपकी टोटल टैली हो रही है, इसलिए यहाँ पे डैश कर दो, डैश। यहाँ पे आपका अमाउंट नील रहेगा, बैलेंस आपका यहाँ पे नील रहेगा, यहाँ पे बैलेंस आपका आने वाला नहीं है, इसलिए डैश करो या नील लिखो। यहाँ पे बैलेंस आपका फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे आपका अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, डिप्रिसिएशन वाज क्लोज नाउ इनटू दैट प्रॉब्लम 1,61,450। यहाँ पे आपका अकाउंट क्या हो जाता है, पूरा यहाँ पे क्लोज हो जाता है 1,61,280, 1,61,480। यानी इस स्टेटमेंट का मल्टीयूज आपका होता है। इस स्टेटमेंट में से आपका अमाउंट जो लेना है, पहले ये का अमाउंट आपको लेना है सेल ऑफ मशीन्स का, ये डिप्रिसिएशन 7,500 का 6 मंथ का, और ये 3,750। ये 7,500 जो आपका डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स 6 मंथ का। पीएल अकाउंट का लॉस है आपका, पीएल अकाउंट ये लॉस है आपका। एंड टोटल डिप्रिसिएशन जो आपका है, टोटल वैल्यू ऑफ ये दिस सेलिंग प्राइस है, दिस सोल्ड प्राइस टेकिंग फ्रॉम द कैश होल्डिंग बैंक। सोल्ड 1,50,000 आपको लेना है, तो 1,50,000 इसका यूज आपको होगा। 7,500 आपका डिप्रिसिएशन है और 3,750 आपका पीएल अकाउंट का लॉस है। यानी ये चार्ट का आपको मल्टी यूज होता है। यू कैन कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन्स। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन्स आपका आया हुआ है 3,750 रेट ऑन। तो 3 चीज आपको हमें कैलकुलेट करना है हमेशा जब एक आधी मशीन आप सोल्ड करते हैं, तो बाय कैश सोल्ड का अमाउंट, बाय डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है उस डेट तक का, जिस डेट को आपने सोल्ड किया उस डेट तक का डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। और वहां पे लॉस या प्रॉफिट है, लॉस आया तो क्रेडिट साइड में लिखना है, प्रॉफिट आता है डेबिट में लिखते थे टू पीएल अकाउंट प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका नहीं आया, आपका प्रॉफिट आया तो डेबिट में लिखते थे, और प्रॉफिट आपका नहीं आया, लॉस आया, लॉस इधर राइट डाउन द क्रेडिट साइड ऑफ दैट अकाउंट। अकाउंट के क्रेडिट साइड में लॉस होता है, डेबिट में आप लिखते हैं, डिफरेंस आता है, उससे प्रॉफिट का आता है। इसलिए 7,500 आपको डिप्रिसिएशन आपका 6 मंथ का, सोल्ड के प्राइस आपको यहाँ पे 3 आइटम कैलकुलेट करना है, बाय कैश ऑफ बैंक अकाउंट, सोल्ड, डिप्रिसिएशन, पीएल। और हमेशा की तरह 2 कैलकुलेशन आपको करना है 31 मार्च को बाय डिप्रिसिएशन पीएल अकाउंट। ये आप कैलकुलेट जो करते हैं डिप्रिसिएशन पीएल अकाउंट, डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट, डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट, डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट आपको यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपकी टोटल टैली हो जाती है, इसलिए यहाँ पर आपका अमाउंट क्या आएगा, यहाँ पे ये तीनों टोटल आप क्या किया 1,61,200 यहाँ पे क्या करना है, डैश कर देना है और टोटल टैली कर देना है। यानी सेलिंग ईयर के वक्त आपको क्रेडिट साइड में लॉस आता है तो 5 आइटम आपको कैलकुलेट करना है क्रेडिट साइड में, बाय ये 2 हमेशा की तरह आपको बाय डिप्रिसिएशन आपको बैलेंस शीट ये तो आपको मालूम है। यानी फर्स्ट जो अमाउंट है आपका बाय कैश, इसमें सोल्ड प्राइस आपको लिखना है, यहां पर आपको कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन सेलिंग डेट तक का, और प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लॉस है तो लॉस अमाउंट आपको करना है। 3 कैलकुलेशन आपको यहाँ पे सेलिंग के वक्त आपको करना है, 2 हमेशा करते करना है, 5 आइटम आपको क्रेडिट साइड में कैलकुलेट करना है बाय कैश, सोल्ड अमाउंट, डिप्रिसिएशन, पीएल, डिप्रिसिएशन बैलेंस। 1 2 3 4 5 कैलकुलेशन आर कैलकुलेट व्हेन द मशीन वाज सोल्ड। जब आप मशीन आपकी सोल्ड होती है, जब मशीन सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, तो आपको 5 कैलकुलेशन आपको करना है। लॉस है तो क्रेडिट साइड में, या तो डेबिट साइड में आपको प्रॉफिट आता है, डेबिट साइड में उसको राइट रखा।
ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर सेकंड इन द बुक्स ऑफ साई इंडस्ट्रीज मशीनरी अकाउंट्स which you prepare the statements in the profit and loss and sale of assets और डिप्रीशिएशन आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे डिप्रीशिएशन को फार्मूले के अमाउंट रिलेटेड आइटम्स आपको दिए थे, कॉस्ट प्राइस दिए थे, स्क्रैप वैल्यू दिए थे, वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन आपको दिया था, इसलिए विच यू अप्लाई द फर्स्ट फार्मूला। कभी कभी आपको डिप्रीशिएशन का परसेंटेज दिया जाता है, तो परसेंटेज से डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेशन आपका आता है फॉर्मूले द्वारा तो वो पूरा 1 साल का होता है। उसके बाद में उसके हाफ ईयर और 3 ईयर्स उसका डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है, और बाद में कैलकुलेशन को आपको हेल्प होता है। 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इसके अलावा डिप्रीशिएशन ज्यादा करके आपको कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में नहीं कहा जाता है। यानी 12 मंथ का, 6 मंथ का, 3 मंथ का आपको ज्यादा से ज्यादा आपको कैलकुलेशन आपको करना है। इसलिए सेलिंग डेट के होता है आपको 5 कैलकुलेशन आपको क्रेडिट साइड रख के आगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट सोल्ड का अमाउंट आपको लिखना है। डिप्रीशिएशन के ऊपर कैलकुलेट करना है ओपनिंग से डेट से लेकर सेलिंग डेट तक का। बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आपको स्टेटमेंट में आया हुआ है। लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स अपनी बुक वैल्यू थी 1,53,750 को, उसको सोल्ड करना चाहिए था, मगर आपने बेचे उसको 1,25,000 में, यानी ऊपर का जो डिफरेंस आ रहा है यानी कम रेट में आपने उसको सेल किया, इसलिए लॉस ऑफ द सेल ऑफ मशीनरी सेल करके आपको लॉस हुआ। इसलिए लॉस कितना हुआ 3,750। इस स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। इसलिए स्टेटमेंट आपको रफ में प्रिपेयर करना है, इसलिए रफ वर्किंग आपको पेज रखना है रफ वर्किंग के लिए नेसेसरी आपको है, क्योंकि बाकी के एडिशन आपके बराबर है। यहाँ पे आपकी टोटल टैली हो रही है, इसलिए डिप्रीशिएशन और बैलेंस शीट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या होता है हमेशा की तरह आपको 12 मंथ का डिप्रीशिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाद में उसका बैलेंस, वो बैलेंस आप बराबर करते हैं। और इनटू दिस प्रॉब्लम व्हेन द सेलिंग ऑफ मशीन्स, कभी कभी यहाँ पे टैली होता नहीं है प्रॉब्लम, यहाँ पे आपका टैली हुआ सेलिंग के वक्त, कभी कभी यहाँ पे डिप्रीशिएशन आपको 12 मंथ्स का लेना पड़ता है। जो 12 मंथ्स का डिप्रीशिएशन आपका है 15,000, यहाँ पे आप राइट डाउन कर देते हैं, बाद में उसका डिफरेंस निकालते हैं। इनटू दिस प्रॉब्लम ये 3 इसमें टोटल आपकी तैयारी है 1,61,250, 1,61,250। यहाँ पे आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है, डिप्रीशिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट आपका क्लोज होता है, इसलिए यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद में कहा गया कि आल्सो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, डिप्रीशिएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। ये डिप्रीशिएशन अकाउंट कैलकुलेट किए वो आपको डिप्रीशिएशन अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो डिप्रीशिएशन अकाउंट्स हाउ टू प्रिपेयर, आपका मशीनरी अकाउंट्स, इसके बाद में आपको प्रिपेयर करना है डिप्रीशिएशन अकाउंट। हाउ टू प्रिपेयर डिप्रीशिएशन अकाउंट, लेजर के द्वारा आपको फॉर्मेट आता है। ये पहला सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन आपका है। दूसरा सोल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है डिप्रीशिएशन अकाउंट, डिप्रीशिएशन अकाउंट, डिप्रीशिएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। लेजर फॉर्मेट आपका होता है, डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये आपका डिप्रीशिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड आपकी है। डेट में डेट लिखना है आपको, पर्टिकुलर आपको डिप्रीशिएशन अकाउंट आल्सो प्रिपेयर करने के लिए कहा है। जेएफ जनरल फोलियो, अमाउंट इन रुपीज, अगेन डेट क्रेडिट साइड में, पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो जेएफ अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। तो हमेशा आपको 31 मार्च ये आपकी क्लोजिंग डेट है, वो 31 मार्च को आपको यहाँ पे डिप्रीशिएशन अमाउंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 2017 मार्च 31 ये जो अमाउंट पहला होता है वो मशीनरी अकाउंट आपकी है, इसलिए मशीनरी अकाउंट एसेट अकाउंट आपका डेबिट होता है, तो मशीनरी अकाउंट डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट आपको क्रेडिट होता है। कितना है पहले डिप्रीशिएशन आपका 3,750, ये पूरा ईयर का आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है 3,750। इसको क्लोज करना है मार्च के बाद में, नेक्स्ट उसी ईयर में आपको पूरा क्लोज करना है 2017 31 मार्च, 2017 31 मार्च, मार्च 31 बाय पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट को उसको ट्रांसफर करना है 3,750, और इसको यहाँ पे क्लोज करना है 2 लाइन ड्रॉ करके। ये होगा आपका 17 का डिप्रीशिएशन। उसके बाद 2018 मार्च 31 टू मशीनरी अकाउंट, कितना है 31 मार्च 2018 का 15,000, ये 15,000 को डिप्रीशिएशन का 15,000, इसको ट्रांसफर करना है 2018 मार्च 31 बाय पीएल अकाउंट को ट्रांसफर करना होगा टीएल अकाउंट 15,000, इसको क्लोज कर देना है 2 पैरेलल लाइन इसको ड्रॉ करना है। तो उसका 2019 मार्च 31 टू मशीनरी अकाउंट
टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ पर डिप्रेशन कितना आ गया 7,500, ये डिप्रेशन आपका आया 7,500, ये डिप्रेशन का अकाउंट, जितना डिप्रेशन उसका अकाउंट आपको उस 31 मार्च को क्लोज करना है। 7,500 2019 मार्च 31 बाय मार्च 31 बाय पीएल अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है 7,500। दो पैटर्न आपको ड्रॉ करना है इस कॉलम में। योगा डिविडेशन अकाउंट इस तरह प्रिपेयर किया था। मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट 31 मार्च को आपको क्लोज करना है। 31 मार्च टू मशीनरी अकाउंट, 31 मार्च बाय पीएल अकाउंट, 31 मार्च 2018 मशीनरी अकाउंट, 31 मार्च 2018 बाय पीएल अकाउंट 15,000, 31 मार्च 2019 7,500, 31 मार्च बाय पीएल अकाउंट 7,500। यानी जो डिप्रेशन आपका है 1 साल 2 साल 3 साल, वो डिप्रेशन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। डिप्रेशन आपका है, ये सेकंड डिप्रेशन आपका है, ये थर्ड डिप्रेशन आपका है, राइट तो देन डिप्रेशन अकाउंट। एंड डिप्रेशन अकाउंट को आपको डेबिट में डिप्रेशन अकाउंट व्हेन यू प्रिपेयर द डिप्रेशन अकाउंट, हमेशा लेजर का तरह आपका फॉर्मेट उसका होता है। मशीनरी अकाउंट पीएल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बाय पीएल अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट बाय पीएल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट टू पीएल अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है व्हेन यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। इस तरह मशीनरी अकाउंट्स एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट आर प्रिपेयर्ड व्हेन आस्क्ड इन आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो अकाउंट पूछे गए थे, मशीनरी अकाउंट ओपन एंड आल्सो प्रिपेयर डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट हाउ टू प्रिपेयर वी सी डेबिट साइड में आपको जो डिप्रिसिएशन जितना आपने कैलकुलेट किया वो डिप्रिसिएशन अकाउंट में डिप्रिसिएशन आपको राइट डाउन करना है 31 मार्च को डेबिट में लिखना है, 31 मार्च को आपको उसी ईयर में आपको क्लोज करना है। इसी तरह हर डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन आपको इस प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2। मेथड फर्स्ट के अनुसार स्टैंड प्लान मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जो आपको दिया गया उस मेथड से वी शुड कैलकुलेट द फर्स्ट मेथड हाउ टू कैलकुलेट मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट्स व्हेन द above information is given and calculate the amount of machinery accounts and amount of depreciation. And into this problem the machinery was sold and loss on sale of machine we see into this problem number 2। problem number 2 में मशीनरी बेच कर आपको यहाँ पे लॉस हुआ है 3,750 रुपए। तो ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद देखेंगे आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 पेज नंबर 225। 225 नेक्स्ट पेज जो आपका है 245 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 टेक्स्ट बुक सामने रखिए। स्ट्रक्चर आपको दो ही अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट्स। हाउ टू एंड एखादे बार मशीनरी सेल होती है तो सेल ऑफ अमाउंट वी शुड प्रिपेयर द स्टेटमेंट इन वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, उस स्टेटमेंट का आपको मल्टी यूज होता है, बाद में ट्रांसफर करने के लिए थोड़ा इजी जाता है, इसलिए वर्किंग नोट इज नेसेसरी व्हेन यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड सेल ऑफ मशीनरी ऑफ डिप्रिसिएशन। हाउ टू कैलकुलेट वी सी इनटू दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 अपने डिटेल्स में देखें। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।